In the Old Testament, the number one sins were murder and adultery. और पुराने नियम में देखते हैं कि खून करना या फिर व्यभिचार करना यही सबसे बड़े पाप होते थे। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में when Jesus hardly ever spoke about murder and adultery, और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कम बार जो है खून करना या फिर व्यभिचार के बारे he में बात spoke किया। about hypocrisy and pride. उसने जो है घमंड के बारे में और अपना दिखावा दिखाने के बारे में बात किया है। Who did Jesus condemn the most when he was on earth? सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने किस पर दोष लगाया? Not the murderers and thieves and adulterers. खूनी, चोरी और व्यभिचारी के ऊपर नहीं। There were crooked tax collectors like Zacchaeus. He went to their house. और वहाँ पे जो है टैक्स लेने वाले लोग थे, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह गया। He even selected one tax collector called Matthew to be his disciple. और खुद जो है प्रभु यीशु मसीह ने एक जो चुंगी लेने वाला है उसको अपना चेला बनाया, Because they were willing to change. क्योंकि वो तैयार थे बदलने के लिए। But when it came to the Pharisees, लेकिन फरीसियों के बारे में आया तो he condemned the Pharisees for basically two sins. और दो पाप के लिए जो है उनको जो है दोषी ठहराया। He didn't say you murderers और उसने ये नहीं कहा कि तुम खूनी or you adulterers. और तुम व्यभिचारी हो, The Pharisees were not murderers or adulterers. क्योंकि फरीसी लोग जो है वो व्यभिचारी और खूनी नहीं थे। You people sitting here, you are not murderers or adulterers. और आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं आप खूनी या व्यभिचारी नहीं हो। But what did he say to the Pharisees? लेकिन फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? You hypocrites. कि ढोंगी। And the word hypocrite means actor. या ढोंगी का मतलब ये है कि आप जो दिखावा कर रहे हैं, Those who act holy, आप जो है नाटक कर रहे हैं पवित्र होने का, who speak holy language, और आप पवित्र जो भाषा को उपयोग में लाते हैं, but are something quite different in private. और जो निजी Private जीवन life, they are different. जो आप निजी जीवन में वैसा नहीं करते हैं। Like some of these Hollywood actors, जैसे कि हॉलीवुड अभिनय करने वाले, you can act like Moses in a movie. और वो अभिनय करते हैं मूसा की तरह, But in his private life, he may have divorced 3-4 times and drunkard and gambler and all that. लेकिन असलियत में देखे तो वो 3-4 बार शादी कर चुका है, डिवोर्स दे चुका है, And next day he again comes for acting, he's again Moses. और अगले दिन वो फिर से जो है अभिनय करने के लिए मूसा बन जाता है। Exactly how some Christians are. That is how some Christians are. हाँ, कई मसीह लोग भी इसी प्रकार से हैं। That is why the Bible says it's very difficult to be a Christian in the last days. और इसलिए पवित्र कलाम बाइबल कहता है कि अंतिम दिनों में बहुत ही कठिन है मसीह होकर जीना। You have this mixed multitude all calling themselves Christians. और इस प्रकार का मिश्रण जो है बना हुआ है जहाँ पे लोग कहते हैं कि हम मसीह लोग हैं, It's light and darkness mingling together. यानी कि रोशनी और अंधकार एक साथ मिला हुआ है, And we think everything is light. और हम सोचते हैं कि सब रोशनी है। It's not true. ये सच्चाई नहीं। So that's why we have to be very, very alert in the last days. इसलिए अंत के दिनों में हमें बहुत सावधान रहना है। It says in Jude, in the book of Jude, और यहूदा की किताब में लिखा हुआ है, now this is in the first century when the apostles were still alive. और पहली शताब्दी में जब चेले लोग जीवित थे, Even at that time, और उस समय भी these crooks came into the church. और इस तरह के लोग जो हैं कलीसिया में थे। But it's going to be much worse in the last days. लेकिन अंत के दिनों में बहुत भयंकर तरीके से बढ़ेगा, Because there will not be that type of fiery, holy leadership in the last days. क्योंकि अंत के दिनों में आग से भरे हुए अगुवे लोग नहीं होंगे। And as Jude says, और यहूदा की किताब में लिखा है, पत्री में read लिखा है, these words in the 4th verse of his letter. और पहले अध्याय के 4वां वचन पढ़ते हैं। Certain persons have crept in unnoticed. क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य छुपके से हम में आ मिले हैं। How does a person creep in unnoticed into a church? देखिएगा किस प्रकार से बगैर जाने जो है वो मनुष्य कलीसिया के अंदर छुपके से घुसता है। These are people, verse 4, who have turned the grace of God into licentiousness. और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं। That means, you know, licentiousness is from the English word license. और ये जो वर्ड है, शब्द है लूचपन, वो अंग्रेजी शब्द जो लाइसेंस से आया है। You know, like you get a driving license, जिस प्रकार से हमारे पास ड्राइविंग का लाइसेंस रहता है, then you can drive.
तभी आप गाड़ी चला सकते So हैं। what does it mean? They've turned the grace of God into licentiousness. यानी कि जो परमेश्वर के अनुग्रह है उसको लूचपन में किस That तरह से means बदला। they've taken the grace of God like a license. Now I can commit sin. तो उन्होंने जो परमेश्वर के अनुग्रह को लाइसेंस की तौर से ले लिया है कि अब मैं पाप कर सकता हूँ। Like you get a license to drive. जिस प्रकार से गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस मिलता है, Grace of God means license to sin. इस प्रकार से जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो हमारे लिए लाइसेंस है पाप करने के Under लिए। the law, you could not do it because you'll be punished, you'll be killed sometimes. और व्यवस्था के अधीन रहकर आप नहीं कर सकते क्योंकि उसके अधीन में आपको दंड मिलेगा। In the law, if you committed murder, you were killed. अगर जो व्यवस्था के अधीन आप रहोगे, अगर जो आप किसी का खून करते हैं तो आपको भी मार डाला जाएगा। If you committed adultery, you were stoned to death. अगर जो आप व्यभिचार करते हैं तो आपको पथरवाह किया जाएगा। But now we are under grace. लेकिन अब आप अनुग्रह में हैं। Grace means you can sin. अनुग्रह का अर्थ है आप पाप कर सकते हैं। Just say one sentence, Lord, please forgive me. एक शब्द कहें कि परमेश्वर कृपया करके मुझे क्षमा करें Forgiven, blotted out. और माफ कर दीजिए और फिर Now निकल it is गए just as if I've never sinned. और अपने आप को जो है न्याय चुकाया। Tomorrow I go and do again same thing. और फिर कल से फिर वहीं पे जा रहा हूँ। But I've got this license. तो मेरे को लाइसेंस मिला है, Grace. अनुग्रह, That is false grace. और वो एक नकली अनुग्रह है That's not the meaning of grace. और ये अनुग्रह का अर्थ नहीं। So these people have crept in unnoticed into the church. और वो इस प्रकार से कलीसिया में घुस गए हैं छुपके से, Because very often the leaders don't understand what grace is. क्योंकि अनुग्रह के बारे में खुद अगुवे लोग नहीं पहचान पाए। What is the true grace of God? असली परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? See Romans 6:14. रोमियो 6 उसका 14 दिखेगा। Romans 6:14 is a great verse that teaches what the true grace of God is. और रोमियो 6 उसका 14 जो है असली अनुग्रह के बारे में सिखाता है। It's very clear. यहाँ पे बहुत ही साफ सुथरे लफ्जों में लिखा है। I'll read it to you. यहाँ पे मैं पढ़ना चाहता हूँ And I believe even a 10-year-old here can answer this question. और मैं विश्वास करता हूँ कि 10 साल का एक बालक भी जो है इसका जवाब It दे is सकता such है। a simple statement. ये बिल्कुल साधारण सा एक यहाँ पे वचन दिया है When you are under grace कि कब तुम अनुग्रह के अधीन हो and not under law, और कब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, the proof is और उसका जो यहाँ that पे sin will not be able to rule over you. इसका अर्थ यह है कि जो पाप है वो आपके ऊपर काबू नहीं कर सकता, नियंत्रण नहीं कर सकता, That is the true grace of God. और वही परमेश्वर का असली अनुग्रह है। So according to this verse, और यहाँ पे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार if sin rules over you, you're under law. अगर जो पाप आपके ऊपर प्रभुता करता है इसका मतलब आप व्यवस्था के अधीन हो। If sin cannot rule over you, then you're under grace. अगर जो व्यवस्था आपके अधीन नहीं है यानी कि आपके ऊपर प्रभुता नहीं करता है तो आप अनुग्रह के अधीन हो। You read that verse and tell me if you get any other meaning of that verse. ये वचन पढ़ने के बाद क्या आपको कोई और अर्थ समझ में आता है या कोई और अर्थ मिलता है? Sin cannot be master over you because you're not under law now. पाप जो है आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं हो, Under grace. लेकिन अनुग्रह के अधीन। So the false grace is, जो नकली अनुग्रह है, it doesn't matter if you sin और उसके लिए अगर जो आप पाप भी करते हो तो उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता because you're not under law. क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं हो, Because you're under grace, it doesn't matter if you sin. और क्योंकि आप जो है व्यवस्था के अधीन नहीं हो इसलिए पाप करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। That is the false grace. और ये नकली अनुग्रह है। And people who have crept into the church unnoticed. और लोग जो है छुपके से अंदर आ चुके हैं। See, this creeping reminds me of snakes. और जो रेंगना है वो सांप को दिखाता है। Elephants and lions and all don't creep. और जो हाथी और शेर कभी रेंगते नहीं है। Creeping in unnoticed reminds me of a snake. और जो रेंग कर अंदर घुस जाना वो सांप को दिखाता है। How did these people creep in? और लोग रेंग कर कैसे घुस जाते हैं? Because the doorkeeper went to sleep. क्योंकि जो दरवाजे पर जो चौकीदारी कर रहा है वो सो रहा है। Every church must have a doorkeeper. हर एक कलीसिया में एक चौकीदार होना चाहिए। At least one among the 2 or 3 elders must be a strict doorkeeper. कम से कम 200-300 में एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जो कि चौकीदारी करता हो। All the elders don't have to be strict. और दूसरों को जो है बहुत स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत नहीं। Like I say, among parents, father and mother, at least one of them must be strict. कम से कम माता पिता में से एक ऐसा होना चाहिए जो कड़क हो। Both don't have to be strict. दोनों को कड़क नहीं होना। But one
father or mother must be strict, otherwise I guarantee the children will go astray. हाँ, कम से कम माता पिता में से एक व्यक्ति को तो कड़क होना चाहिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे.